بہت شکریہ. یہ اعظم گڑھ وہ جگہ ہے جہاں سے میں نے کبھی اپنے شہری سفر کا آغاز کیا تھا اور آپ کی ڈھیر ساری دعائیں لے کر جہاں جہاں جاتا ہوں لوگ محبتوں کے ساتھ سنتے ہیں. میں پیش کرتا ہوں. خاص طور سے میرے جو بزرگ تشریف رکھتے ہیں وہ بھی تھوڑا سا جڑ جائیں. سماعت فرمائیں. جی بھائی پڑھیے. بھڑک اٹھیں گے شعلے آگ لگ جائے گی سینے میں. بہت شکریہ. آپ کو خاص طور سے میں شریک کرتا ہوں. یہ جو میرے بھائی بیٹھے ہیں سنیے گا. بھڑک اٹھیں گے شعلے آگ لگ جائے گی سینے میں مئی پھر لوٹ آئے گا دسمبر کے مہینے میں. نہیں دیکھیے بہت اچھا. میں سلام عرض کرتا ہوں لیکن ایک گزارش. میں آپ کا اپنا ہوں. آپ مجھ سے کتنی بھی دیر مجھے آپ خدمت کا موقع دے سکتے ہیں لیکن جو میرے بھائی چند بھائی بیٹھے ہیں یہ کبھی شرٹ اچھلی اعتراض اس پہ پہلے بھی کیا گیا. میں اعتراض نہیں کر رہا لیکن بھائی ہوں آپ کا ایک مشورہ دے سکتا ہوں. مشورہ یہ کہ 3 دوست تھے. دولت، شہرت اور عزت. تینوں میں بہت گہری دوستی تھی. ہدیے تھی. جی پرانا ہے تو ارے دیکھیے میرا بھائی بالکل نیا ہے لیکن دیکھیں آپ ایک چیز دیکھیں لیکن ان سے محبت میں اتنی کرتا ہوں جتنی آپ سے کرتا ہوں. یہ واقعہ آپ نے کہا پرانا مجھے شاید یاد نہیں. میں اعظم گڑھ میں آپ کا پیش کیا لیکن عرض کر دوں صرف اس کا نچوڑ یہ تھا کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے اردو زبان شرمندہ ہونے لگے. میں پیش کرتا ہوں. بھائی سنیں. بھڑک اٹھیں گے شعلے آگ لگ جائے گی سینے میں مئی پھر لوٹ آئے گا دسمبر کے مہینے میں. تمہارے روپ کی گرمی ارے توبہ تمہارے روپ کی گرمی ارے توبہ جو بوڑھے بھی تمہیں دیکھیں نہا جائیں پسینے میں. جو بوڑھے بھی تمہیں دیکھیں نہا جائیں پسینے میں. بہت شکریہ. سلام عرض کرتا ہوں. بہت شکریہ. 4 مصرے اور پیش کرتا ہوں اور خاص طور سے جو میرے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں یقین مانیے آپ بہت اچھا سن رہے ہیں اور یہ نوجوان ہمارے یہ مستقبل ہے. پیش کرتا ہوں. سنے گا. تتلیوں کے دامن بھی نم دکھائی دیتے ہیں. تتلیوں کے دامن بھی. یہ جو محلہ ہے بہت اچھا سن رہا ہے. آپ بھی شریک ہو جائیں پلیز. بہت شکریہ. اب میں دیکھتا ہوں کہ میرا کون سا بازو زیادہ مضبوط ہے. میں پیش کرتا ہوں. تتلیوں کے دامن. ارے میری جان شعر تو پڑھنے دے پہلے. ارے نہیں اب دیکھنے والی چیز نہیں ہے اب سننے والی ہے. تتلیوں کے دامن بھی نم دکھائی دیتے ہیں. تتلیوں کے دامن بھی نم دکھائی دیتے ہیں. پھول اب گلابوں کے کم دکھائی دیتے ہیں. پھول اب گلابوں. اچھا میں نے آپ پر ایک بار اعتراض کیا کہ شرٹ مت اچھالنا تو آپ ناراض ہو گئے تھے یعنی خاموش ہو گئے تھے. آپ شرٹ نہیں آپ جو چاہے وہ کر سکتے. نہیں ایسا نہیں. میں صرف عرض کر دوں میں آپ سے صرف اتنی گزارش کروں گا آپ شرٹ دیکھیے اچھالیے نہ اچھالیے آپ بہتر سمجھ لیکن خاموشی کے ساتھ نہ سنیں. میں پیش کروں. ہماری جان نکل جاتی ہے آپ خاموش ہو جاتے ہیں تو. تتلیوں کے دامن بھی نم دکھائی دیتے ہیں. پھول اب گلابوں کے کم دکھائی دیتے ہیں. بہت شکریہ.
अब मुझे आजमगढ़ पर पूरा एतमाद है कि मैं एक शेर पढ़ूंगा और आप सबकी दुआएं नसीब होंगी। मैं एक शेर पेश करता हूं। दूसरों के गम को जो अपना गम समझते हैं, सुनेगा, दूसरों के गम को जो अपना गम समझते हैं, ऐसे लोग दुनिया में कम दिखाई देते हैं। ऐसे लोग दुनिया में कम दिखाई देते हैं। ऐसे लोग दुनिया में। बहुत शुक्रिया, आपने मेरे इस शेर की हिफाजत की। मैं पेश करता हूं। ऐसे लोग दुनिया में कम दिखाई दे। और आज की रात कोई शेर भी सुनाया जाए। मेरे बड़े भाई जनाब नदीम फारूक साहब तशरीफ रखते हैं। मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूं। इस स्टेज पर सभी मेरे मेहमानान तशरीफ रखते हैं। जनाब मोहतरम इरफान साहब कन्वीनर मुशायरा। मैं एक शेर पेश करता हूं। हिजर में तेरे बरसों आईना नहीं देखा। शौरा इकराम खास तौर से, हिजर में तेरे बरसों आईना नहीं देखा। अपने आप को भी हम कम दिखाई देते हैं। अपने आप को। हाशिम क्या अच्छा शेर है, वाह 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 वाह। हिजर में तेरे मैं पेश करता हूं। आपने मुझे शेर के पढ़ने का हुक्म दिया, बहुत अच्छा लगा। हिजर में तेरे बरसों आईना नहीं देखा। अपने आप को भी हम कम दिखाई देते हैं। अपने आप को। और एक शेर पेश करता हूं। ये इंटरनेट का दौर है। मेरे तमाम यहाँ फेसबुक फ्रेंड बैठे हुए हैं, तमाम मेरे ब्लॉग पर तमाम मेरे दोस्त में तशरीफ रखते हैं। मैं एक शेर पेश करता हूं और मैं बहुत ज्यादा आपका वक्त जाया नहीं करूंगा। अगर आप इस शेर पर खामोश है तो मैं समझ जाऊंगा कि मुझे आपकी कितनी देर खिदमत करनी है। मैं एक शेर पेश करता हूं। शायरी के फन से ही शोहरतें मिली इतनी। पेश करता हूं अख्तर भाई। कहां है? शायरी के फन बहुत अच्छी से महफिल से। एक बार जोरदार तालियां मुझे अख्तर भाई के लिए जो इतनी खूबसूरत महफिल सजाई। मैं एक शेर पेश करता हूं। शायरी के फन से ही शोहरतें मिली इतनी। लड़कियों की आंखों में हम दिखाई देते। वाह 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 वाह। जनाब हाशिम फिरोजाबादी। नहीं, आप वैसे ही परेशान हो गए, वो जा नहीं रहे थे। कभी कभी शायर जाके भी देखता है। देखिए हाज़िन, यकीन मानिए, लेकिन ऐसा मैं देख नहीं रहा था। मैं अपने आप को जब खतरे में महसूस करूंगा उससे बेहतर कि इज्जत बचा ली जाए। नौजवानों, मैंने कभी ये कहा था कि याद उसकी बहुत सताती है। याद उसकी बहुत सताती है, शोर तन्हाई में मचाती है। याद उसकी बहुत सताती है, शोर तन्हाई। मैं कभी दूसरे शायरों के शेर कोट करके ताली नहीं बजवाता। मैं दूसरों के शेर सुना आपसे फायदा उठाऊं। मैं अपने ही शेर बीच में कोट करूंगा। याद उसकी बहुत सताती है, शोर तन्हाई में मचाती है। इमरान, याद उसकी बहुत सताती है, शोर तन्हाई में मचाती है। वो लगी थी गले बहुत पहले, शर्ट से अब भी खुशबू आती है। वो लगी थी गले बहुत पहले, शर्ट से अब भी खुशबू आती है। तो ये हाशिम साहब, इसमें उसका कमाल कम है, परफ्यूम का कमाल ज्यादा है। परफ्यूम अच्छी कंपनी का होगा, इसलिए खुशबू अब तक आ रही है। याद उसकी बहुत सताती है। जी 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 जी। मैं 4 मिसरे पेश करता हूं, समात फरमाए। मोहब्बत का घना बादल बना देता तो अच्छा था। आपके जो मेरे भाई, आप एक जो मेरे चंद लोग बैठे अभी एक गजल का हुक्म दिया। एक में जब आया हाशिम भाई, वो पढ़ दीजिए। आलम पना और न सुल्तान जाएंगे, जन्नत में सिर्फ साहिब ईमान जाएंगे। मैं उससे कबल गुजारिश कर दूं, जो मैं पहले आपको सुनाया करता था वो शायरी नहीं थी, वो आपके जज्बात से खेला करता था। मैं कोशिश करूंगा शायरी सुनाऊं। 4 मिसरे यूं सुन ले कि मोहब्बत का घना बादल बना देता तो अच्छा था। मोहब्बत का
घना बादल बना देता तो अच्छा था, मुझे उस आंख का काजल बना देता तो अच्छा था। चौथा मिसरा पेश करता हूं। मोहब्बत का घना बादल बना देता तो अच्छा था, मुझे उस आंख का काजल बना देता तो अच्छा था। उसे पाने की ख्वाहिश अब मुझे जीने नहीं देती, खुदाया तू मुझे पागल बना देता तो अच्छा था। उसे पाने की ख्वाहिश अब मुझे जीने नहीं देती, खुदाया तू मुझे पागल बना देता तो अच्छा था। चार मिसरे पेश करता हूं, सुनिएगा। गुलों के तन पे बैठी तित लिया अच्छी नहीं लगती। गुलों के तन पे बैठी तितलियां अच्छी नहीं लगती। यहां से आप सबको जोड़ता हूं, शायरी सुनाने की कोशिश करता हूं, इस दौर की नई शायरी में पेश करता हूं। गुलों के तन पे बैठी तित लिया अच्छी नहीं लगती, सुकून दिल पे गिरती बिज लिया अच्छी नहीं लगती। नौजवानों, बताना कि आप यहां मौजूद हैं, मेरी शायरी में आप मौजूद होंगे। पेश करता हूं। गुलों के तन पे बैठी तित लिया अच्छी नहीं लगती, सुकून दिल पे गिरती बिज लिया अच्छी नहीं लगती। यकी जानो वो जिस दिन से मेरे कॉलेज में आई है। अभी नहीं, मिसरा तो पूरा होने दो। यकी जानो वो जिस दिन से मेरे कॉलेज में आई है, मुझे कॉलेज की अपने छुट्टियां अच्छी नहीं लगती। मुझे मालूम था ये लड़कियां बोलेगा, मैं बराबर गौर कर रहा था इसको। यकी जानो वो जिस दिन से मेरे कॉलेज में आई है, मुझे कॉलेज की अपने वाह 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 छुट्टियां अच्छी नहीं लगती। बहुत शुक्रिया। चार मिसर पेश करता हूं। अपने दिल की खुशी का बदल कह दिया, अपने दिल की खुशी का बदल कह दिया, तेरे होठों को मैंने कवल कह दिया। अपने दिल की खुशी का, अपने दिल की खुशी का बदल कह दिया, तेरे होठों को मैंने कवल कह दिया। एक सहेली तेरी मुझसे नाराज है, एक सहेली तेरी मुझसे नाराज है, मैंने क्यों तुझको जाने गजल कह दिया। एक सहेली तेरी मुझसे नाराज। और चार मिसरे पेश करता हूं। नदीम भाई, खास तौर से आपकी दुआएं चाहता हूं, सुनिएगा बतौर खास। जिसमें छाया तेरी, जिसमें छाया तेरी ऐसा दर्पण हूं मैं, तेरी नाजुक कलाई का कंगन हूं मैं बहुत अच्छा लगा। मैंने एक मिसरा पढ़ा, एक मेरे भाई ने दूसरा मिसरा, मुझे बहुत अच्छा लगा। वरना शायर नाराज हो जाता है कि आप मेरी पुरानी बता रहे हैं। अगर मेरी शायरी आपको याद है, इससे अच्छी भी खुशकिस्मती मेरी नहीं हो सकती। मैं सलाम अर्ज करता हूं। नया तो पहले मसाला तो थूक क्या। पेश करता हूं। जिसमें छाया तेरी ऐसा दर्पण हूं मैं, तेरी नाजुक कलाई का कंगन हूं मैं, तू मिली जब से गोकुल लगे है जहां, तू है राधा मेरी तेरा मोहन हूं मैं, तू मिली जब से गोकुल लगे है। और यहां से चार मिसरे और अपना तेवर दिखाता हूं, पेश करता हूं। आके संसद में जो भी दलाली करे, देश ऐसे ही लोगों से बदनाम है। वाह। आके संसद में जो भी
बदनाम है, ये है संसद भवन कोई कोठा नहीं, ये है संसद भवन कोई कोठा नहीं, इस जगह पर दलालों का क्या काम है, ये है संसद भवन कोई कोठा नहीं, इस जगह पर दलालों का क्या काम है। मैं जाऊंगा, आप मुझे फिर से आवाज दें, एक मतलब पेश करता हूं, आपका हुक्म समाअत फरमाएं। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, 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 ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए। और हाजरीन, मेरी पूरी रात की शायरी एक तरफ और मेरा ये शेर एक तरफ, एक शेर पेश करता हूं और खास तौर से मेरे मेहमान तशरीफ रखते हैं, इनको शरीक करता हूं। अब मेरी कौम को ये बात बतानी है मुझे, अब मेरी कौम को ये बात बतानी है मुझे, अब मेरी कौम को ये बात बतानी है मुझे, अब मेरी कौम को ये बात बतानी है मुझे, आस्तीनों में कोई सांप न पाला